welcome all of you to this function. I guess this is the first time when we have completed the entire 12th standard syllabus. आप लोग जी जान लगाकर सब कुछ छोड़ छाड़कर अच्छे से मेहनत करें और मेडिकल प्रयोजनम का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करें। याद रहेगा मुझे वो हरे बालों वाली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। याद रहेगा मुझे हर वो दिन जब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी उम्र का हो जाया करता था। ये 2 साल यूं बीते मानो पलक झपकते ही साध्वी और हेक्टर मेरे कंधे तक आने लगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हो किसने जाना। थोड़ी सी वो जो एक रिश्ता है ना उसको मेंटेन करके रखो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। सिलेक्शन तो हम लोग तुम्हारे से चलते चलते भी करा देंगे। इन पे हम लोग डिस्कस करते गए। वही बच्चा जो 400 ले आता था वही 620 नंबर ले आया और जीएमसी नागपुर में नहीं। Welcome all of you to this function. It's a very nice function and a very happy day. And there are a lot of reasons for us to be happy. Honestly, this is the first Sunday in a very long time when you guys don't have a class. So we should be very, very happy for that. We don't know what the next Sundays hold for us. There can be a test, maybe 2. So while we have this Sunday, we should enjoy it to the fullest. So congratulations to us for having a nice and normal Sunday in a very long time. Secondly, we have completed our syllabus very nicely, very successfully. Very nicely, especially yesterday we were very nice. It took us 6 hours. Very nice. It was very nice lifelong experience that I'll hold very close to my heart. Anyways, I guess this is the first time when we have completed the entire 12th standard syllabus well before time, and we have complete satisfaction with the work that us teachers and new students have put towards our goal for NEET. It is a happy occasion that we have successfully completed the syllabus and we have taken the next step for the NEET exam. But today's day is not about studies, it is not about academics, it is not about celebrating completing the syllabus. Today's day is more about celebrating your presence amongst us. We realize as faculty members, and I'm sure I speak on behalf of all the faculty members, we realize that your presence with us is very important. We cherish it, we celebrate it. You've been with us since COVID came around. We were there during the online classes, during the online-offline mode, during the 12-hour classes, during the NMC raids, during the photographs in newspapers, and we have done it all. Quite frankly, we have done everything. Now we just need a photograph in newspaper for getting selected. That is the only thing that is left. So, we have gathered here to celebrate this journey together. अगर मैं आप लोगों को जानता नहीं होता तो मैं आप लोगों को बोलता कि आज हम एंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे, मज़ा करेंगे। आप लोग अगर शर्म, लाज, लज्जा कुछ लेके आए हैं तो उसे दरवाजे से बाहर रख दीजिए। पर मैं जानता हूं कि आपके पास वो जो स्टॉक था वो आपने 11वीं में ख़त्म कर दिया। तो ऑफिशियली मैं आप लोगों को आपके फेयरवेल में वेलकम करना चाहता हूं। आज का जो दिन है, हम आपके प्रेजेंस को, आपकी स्माइल्स को और आप लोगों ने हमें जो सिखाया है, हमने आपको जो थोड़ा बहुत सिखाया है, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली जो गेम आज हम खेलेंगे, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ये आपसे थोड़ी बात करें, थोड़ा आपको अपने तरीके से वेलकम करें। तो मैं माइक पास ऑन करना चाहूँगा सबसे पहले तो भाभी को। तालियाँ हो जाएं भाभी के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हम लोगों के साथ आए, मिले, है ना। अच्छा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि 2 साल जो आपने मेडिकल प्रयोजनम के साथ बिताए, है ना, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। अब हम आए यहाँ क्यों आए हैं हम लोग यहाँ पर? सिलेक्शन के लिए, है ना।
तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हो, सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जो आपके पास अब टाइम बचा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्ज़ाम है आई थिंक, है ना? तो आप लोग जी जान लगाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अच्छे से मेहनत करें और मेडिकल प्रयोजनम का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करें, है ना? बस थैंक यू सो मच। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मस्ती तो करनी है ना? बट अभी सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, बट इसके बाद की जो लेवल है वो थोड़ा सीरियस होने वाली है। सीरियस मीन्स जो टेस्ट शुरू होंगे, टॉपिक्स टेस्ट और जो बाकी के सारे जो टेस्ट है वो थोड़ा सीरियसली करिएगा, है ना? यहाँ से थोड़ा पार्ट में पढ़ाई होगी, यानी जैसा एक एक टॉपिक रहेगा उस पर अच्छे से पढ़ना है। यही इसी में यानी जितने बच्चों ने अभी तक थोड़ा सा टाइम पास किया वो अभी सीरियस हो जाना। यही ये टाइम है अच्छे से पढ़ने का और रिज़ल्ट लाने का, ठीक है? थैंक यू। मैं ये मौका लेना चाहूँगा हमारे माननीय चित्रांजन सिंह चौहान जी महाराज का कि वो आए हमें और आप सबको वेलकम करें ऑफिशियल। हमारे बीच एनिमल किंगडम के तो लोग हैं ही, साथ में प्लांट किंगडम के लोग भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक छोटी सी कविता है, वो मैंने लिखी है, भूल चूक माफ कीजिएगा। याद रहेगा मुझे, ठीक है, याद रहेगा मुझे वो हरे बालों वाली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। याद रहेगा मुझे देखकर हिमांशु का दीवार के पीछे छुप जाना, कैलाबाग का बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाना, और मुझे देखते से ही अनगा को नए नए डाउट आ जाना, ठीक है? याद रहेगा मुझे हर वो पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है। भूल नहीं सकता हूँ मैं सिमरन की वो तेज आवाज, मैं आप लोगों को डांटना, जोएल की ना सुनाई देने वाली आवाज, ठीक है? और हमारे कुणाल की वो सुंदर सी स्माइल, ठीक है? वो परफ्यूम की खुशबू तो मुझे आई नहीं कभी, ठीक है? हम वेट ही करते रहेंगे कि आ जाएगा। कौन सा था? वाइल्ड स्टोन? कौन सा है? वाइल्ड स्टोन। याद रहेगा मुझे हर वो दिन जब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी उम्र का हो जाया करता था। आज भी याद है मुझे सोहम और मिताशी को गेम स्पिरिट, ऋषिकेश भुसारी की क्लासेस बंक करना और अथर का मिसाइल मैन बन के उड़ जाना। याद रहेगा मुझे सब कुछ जो मेरी धड़कनों में है और हमेशा रहेगा। हर धड़कन मुझे आपकी याद दिलाएगी। ये 2 साल यूं बीते मानो पलक झपकते ही साध्वी और हेक्टर मेरे कंधे तक आने लगे, ठीक है? इतना ही लिख पाया, उसके बाद तो यशस्वी आई गई थी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, ठीक है, अप्स डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ को कई बार हम थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं, ठीक है? एक बात थोड़ी सी अजीब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी अजीब हो सकती है, शायद कुछ लोगों को अजीब लग भी सकती है, बट मैं ये मानता हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम आएगा, बोर्ड का, आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, तो नीट का रिज़ल्ट, बोर्ड का रिज़ल्ट, उसके बाद नीट पीजी का रिज़ल्ट, या आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, जहाँ भी जाओगे आप, उसका रिज़ल्ट, तो वो जो एक कागज़ का टुकड़ा होता है ना, वो आपका जीवन, आपकी लाइफ में क्या करोगे, कैसे करोगे, सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, वो डिसाइड नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? ठीक है, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मैटर नहीं करता है, ठीक है? इसलिए डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि नीट में कितने नंबर आ गए, कैसे आ गए, कम हो गया, फेल भी हो गए तो परवाह नहीं। समझ रहे हो आप? बस एक बात याद रखना हमेशा कि आप दुनिया में सबसे अनमोल हैं। हो सकता है मेरे लिए ना हो सकता है अपनी सखी सहेली, अपने दोस्तों के लिए आप अनमोल ना हो, ठीक है? हो सकता है कि आप अगर चले जाओ आज के आज ही इस दुनिया से, ठीक है, तो कल हम लोग याद करेंगे, परसों करेंगे, नरसों से भूल जाएंगे, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, नो, ठीक है? सबसे ज़रूरी है आप अनमोल हैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए आप अनमोल हैं, है ना?
डायमंड हो आप, डायमंड भी कुछ नहीं लगता यार, मैं तो कहता हूँ, समझ रहे हो आप इतने अनमोल हो। इसलिए ये मार्क्स वगैरह की चिंता एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं। चिंता कब तक करनी है? जब तक एग्जाम देना है, पढ़ाई करना है, सीरियस मोड पे हर काम करना है। एलॉन मस्क बोलते हैं ना कि जब भी जो भी करो मज़े से करो, दैट्स इट। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो मैटर नहीं करता है। आपकी ड्यूटी क्या है ये बताता हूँ। आपकी ड्यूटी है कि अभी आपको जो टास्क दिया गया है मदर नेचर ने, ठीक है, आप उसको एंजॉय करो। अगर आप अभी फिजिक्स क्लास चल रहा है, सर न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो, ठीक है। केमिस्ट्री चल रहा है, उसको एंजॉय करो, नहीं आता तो भी एंजॉय करो। यही हमने ध्यान में सीखा भी है धीरे धीरे, ठीक है। आपकी ड्यूटी बस इतनी है। आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसको एंजॉय करो। आपको अगर मैंने ऑफर किया कि चलो ग्राउंड चलते खेल के आएंगे, आपको चलना चाहिए, समझ रहे हो आप। और मैं आपसे भी हमेशा ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आप हो सकता है BMS करें, BHMS करें, आप MBBS करें, आप कुछ भी करें XYZ, ठीक है, आप फार्मेसी करें, आप बैलगाड़ी चलाएं, आप गाय चराएं, समझ रहे, आप कुछ भी करें, ये ज़रूरी है कि आप उसको एंजॉय करें, ठीक है ना। तो हर पल में आपको खुशी महसूस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इसका अभ्यास करें तो धीरे धीरे आ जाएगा, ओके। और मार्क्स की चिंता बिल्कुल ना करें, सब होता जाता है, माँ प्रकृति है, चिड़िया के तो हाथ पैर भी नहीं होते, उसको खाना मिल जाता है रोज के रोज, ठीक है ना, ठीक है। तो वो अलग अलग रास्ते खोलती जाएगी, ठीक है। आपके टीचर्स कई बार आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपको डांटते हैं, आपको खड़े करते हैं, ठीक है, आपको कई बार बुरा भी बोलते हैं, ठीक है। मुझसे सबसे ज़्यादा डांट खाने वाला सोहम, ऋषिजीत, ठीक है, ये दोनों हैं, ठीक है। आप लोगों में से गर्ल्स को तो मैंने थोड़ा कम ही डांटा है, किसी को डांटा क्या मैंने इतना ज़्यादा? दिव्या, नहीं, इसको तो ओकेजनली डांटा है वो तो, है ना, मतलब रेगुलर बेसिस पे डांट खाने वाले सोहम और ऋषिजीत हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो टीचर डांटते भी हैं, बुरा भी बोलते हैं, ये सब करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो आपका बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मम्मी पापा भी ऐसे ही, मम्मी पापा भी डांटते हैं आपको ताकि आप कुछ अच्छा कर ले, आप कुछ अच्छा बन ले। हो सकता है हमारे तरीके गलत हो सकते हैं, हो सकता है हमारे तरीके काम करने वाले ही ना हो, पर हमको तो नहीं पता, हमको तो यही पता है, हमने जो हमारे टीचर से सीखा वही हम करते हैं, ठीक है ना। वो कोई भी चीज़ जो आपको बुरी लगी हो हमारी तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वी ऑल आर वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो आपका साथ है, ठीक है, ये हमेशा मैं मिस करूँगा। ये फर्स्ट टाइम है जब हमने किसी को फेयरवेल दिया है, ठीक है, मेडिकल प्रोविजन में पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। 11th वाले बोल रहे थे सर 12th वालों को फेयरवेल तो हमको देने को मिलना चाहिए, मेरे बोला निकल लो यहाँ से, ठीक है, हम देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है ना, जगह भी नहीं थी अपने पास, यू नो, ठीक है, ओके। तो हमेशा खुश रहें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं अब रंजीत सर को माइक देना चाहूँगा वो आपको वेलकम करें अपने स्टाइल से। सर ने बहुत सारी बातें कही, तो मैं उसको एक गाने के माध्यम से पहले शुरुआत कर देता हूँ। चांद तारों से जाना है आगे, क्या? चांद तारों से जाना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, आगे क्या है? पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मुझे बस इतना कहना है कि एक पॉजिटिव, एक खुश शरीर के अंदर एक खुश आत्मा बसती है, और एक खुश आत्मा ही परफॉर्मर होती है किसी भी दिशा में। जैसे हमारे सर ने बोला कि अगर बैलगाड़ी चला रहे हो तो उसका एंजॉय करो,
उसका एंजॉय कैसे करोगे? जब एक खुश शरीर होगा, खुश शरीर में खुश आत्मा होगी, तो वो खुश आत्मा कुछ भी जब करती है तो उसका मजा लेती है। पढ़ाती है तो पढ़ाने का मजा लेती है, पढ़ती है तो पढ़ने का मजा लेती है। तो हम लोग जो है एक बहुत अच्छा सफर रहा हम लोगों का, संघर्षों से भी गुजरा। लॉकडाउन रहा, उसमें भी लोग ऑनलाइन पढ़ते रहे और ऑनलाइन भी वो अपना अधिकतम करते रहे। कुछ कम रहा, कुछ ज्यादा रहा, वो हमेशा रहता है। सारी चीजें, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, दुनिया में कुछ भी एक बराबर नहीं। हाँ, मैं कुछ चीजें ऐड जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे संघर्ष के दिन समाप्त नहीं हुए हैं, शुरू हुए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सर पहले दिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज के बाद जो दिन शुरू होगा, क्योंकि अब ना तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे 24 घंटे, ना हम तुमको देख रहे होंगे, ना हम तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे, डाउट ले देंगे, काम दे देंगे। अब इन 2 सालों में जो एक अदृश्य तार हमारे और तुम्हारे बीच है, एक जैसे तुम अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूं, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच एक अदृश्य बॉन्डिंग चलती है। उसको कोई देख नहीं सकता, वो छुपी हुई है, वो सिर्फ एहसास की जा सकती है। उस अदृश्य बॉन्डिंग को मेंटेन करके रखना है। जैसे कि आप सबको मुझे मालूम है, जैसे जो लोग शेड्यूल भेजते हैं, अब वो शेड्यूल ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद भेजना बंद हो जाए, या मान लो कि हमने आपको कुछ काम दे दिया तो ऐसा ना हो वो काम मिलना बंद हो जाए। थोड़ी सी वो जो एक रिश्ता है ना, उसको मेंटेन करके रखो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। सिलेक्शन तो हम लोग तुम्हारे ऐसे चलते चलते में करा देंगे। चाहे तो आप देख लेना, पहला टेस्ट होगा, हम लोग सीट से याद होगा आपको, रौनक कापसे वाली बैच थी, तो हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए। पहले टेस्ट में बच्चे को 415 नंबर लाए। फिर हम लोग लगातार उनकी टेस्टिंग अपने पैटर्न से, जो हमारे मेडिकल प्रायोजनम का जो स्पेसिफिक टेस्टिंग पैटर्न है, जिसमें हम लोग खुद पेपर डिजाइन करते हैं, खुद डिस्कशन लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे पेपर का एनालिसिस करना है, क्या डाउट रहा, क्यों डाउट रहा, उस पे और किस तरह की समस्याएं बन सकती हैं, इन पे हम लोग डिस्कस करते गए। वही बच्चा जो 400 ले आता था, वही 620 नंबर ले आया और जीएमसी नागपुर में है। तो नंबर इन दिनों में बढ़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं। जिसके अंदर चलने का साहस है, कोई नहीं हरा सकता उसको। कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो बच्चों को हरा दे। मैं तो कहता हूं यहां बैठा हर एक बच्चा नीट में सेलेक्ट हो सकता है, कुछ कम कुछ ज्यादा से। 550 600 नंबर ले आना इतनी बड़ी बात है क्या, जब हम लोग तुम्हें साथ दें। तो कंक्लूड कर देते हैं शॉर्ट में, ज्यादा लंबा ना खींच करके, कि पहली चीज तो खुश रहना है। खुश मन में ही से ही कुछ अच्छा काम कराया जा सकता है। दुखी और डिप्रेस्ड मन कभी अच्छा काम नहीं कर सकता, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि जो अदृश्य तार हमारे तुम्हारे बीच इन 2 सालों में जैसा भी अच्छा बुरा स्ट्रॉन्ग जैसा भी बन पाया, उसको मेंटेन करके रखना। मुझे मालूम है वो अच्छा है। और तीसरी चीज कि तुम विनर हो यार, इतने हल्के में मत ले लेना अपने आप को। विनर हो, तुमने परफॉर्म किया है। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, सोहम से इंटेलिजेंट बच्चा मैंने एक ही पढ़ा रखा है, इक्वल इंटेलिजेंट। क्योंकि टीचर अपने बच्चे का बुद्धि तो जान ही लेते 2 साल में। सोहम के बराबर इंटेलिजेंसी का मैंने एक आदमी केवल पढ़ा रखा है, तेजस, आज से 3 4 5 साल पहले। तो सोहम को 20-25 दिन पढ़ दे तो इनका सिलेक्शन हो जाए। 30 दिन ईमानदारी से 8-8 9-9 घंटे 30 दिन पढ़ते हैं तो इनका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। किसी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, केवल इंसान अपना सिलेक्शन स्वयं रोक लेता है। तो मेरे बच्चों, हमको कॉन्फिडेंट रहना है, हमको एक दूसरे से टच में रहना है, और हमको टेस्ट सीरीज को एक लास्ट लाइन बोल देता, लास्ट लाइन, एक लाइन में ही सब हो जाएगा। जो मेडिकल प्रायोजनम आपको असिस्ट करेगा, उसमें कुछ अपनी तरफ से आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां हम कहेंगे चलो चलो बस वहीं हमारे साथ चलते चलना, अंतिम दिन तुम्हारा रिजल्ट ना आ जाए तो हमसे मिलकर बताना सर जो आपने जहां जहां चलाया हम वहां चले नहीं, हम चले लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। मैं इस बात को गारंटी लेकर के कहता हूं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा। केवल आपको क्या करना है
कि ध्यान रखना है सुबह से शाम तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके जो हमारे टीचर लोग हैं ये जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं कि नहीं, केवल उसी को करना है। अरे 100% ना हो जाए तो 80% कर लेना उसको, 80% ना हो पाए तो 70% कर लेना उसको, 70% ना हो जाए तो 60% कर लेना उसको। वो धीरे 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 आपके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, पोटेंशियल को बढ़ाता जाएगा और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो वो एक बार अचानक से रिजल्ट का रूप ले लेगा। तो कॉन्फिडेंट रहना और साथ रहना, इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू। आपको आगे गाइड करेंगे और तो हम गेम्स की ओर बढ़ते हैं, गेम शुरू करते हैं। और सबसे पहले गेम आप लोगों को खिलाने के लिए और उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं चौहान सर को बुलाता हूँ। चौहान सर आइए। वही लग रहे थे बच्चों। पहला गेम थोड़ा सा वैसा है, कैसा है? वैसा है। सेहत का ध्यान रखें, ठीक है ना? अच्छा, मैं पहला गेम एक्चुअली फोटो सेशन गेम, उसमें अपन फोटो खींचेंगे। अगला गेम है, एक गेम होता है ट्रूथ एंड डेयर, अगला गेम है डेयर डेयर। जिसको डेयर गेम खेलना है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और खड़े हो जाए यहाँ पे आके, ठीक है? वेरी गुड। दो, यस यस, कम ऑन। सुनिए, सर के आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, ठीक है? और यहाँ पे अपन डेस्क बेंच एक और लगा देंगे तो ये अपना सर्कल हो जाएगा, ठीक है? इस सर्कल में सर अपने को टच करेंगे, जिसको टच कर देंगे सर, समझ रहे हो आप, जो लोग खेल रहे हैं, जिसको सर टच कर देंगे उसको, बॉयज़ के लिए बड़ा टमाटर, गर्ल्स के लिए छोटा टमाटर, टमाटर मुंह में भर के फिर फोटो खिंचवानी है। हाँ चलिए, मुंह में रख के फोटो खिंचवाना है। हाँ, और चीज भी बोलना है ना, ऐसे करके। हाँ चलो रख लो। हाँ हाँ हाँ, चीज। हाँ, दोनों उंगलियां नाक पे, अपनी नाक अपनी उंगली, क्या टेंशन है? हाँ चल, से चीज। अब ये दम शराज है। अब सुनो हर्षद, दम शराज खेला है आपने, ठीक है? अब आपको जानवी एक्टिंग करके बताएगी, एक फोटो यहाँ पे रहेगा, उसकी जानवी की एक्टिंग करके बताएगी और आपको पहचानना रहेगा कि वो चीज़ क्या है। ओके, अगर हर्षद आपने बता दिया तो 100 रुपये का इनाम है, प्रियंका मैम देंगी। हाँ,
किए तो पता लगता है कि ये शब्द यूनिवर्सल है। हाँ हाँ, आप दोनों को 100-100 रुपए मिलेंगे, याद रखना अगर जीत गए तो। हाँ पर बोलिए नहीं। हाँ नहीं, कोई लाइफलाइन नहीं, कोई मदद नहीं। हाँ बढ़िया बोलते जाओ आप फटाफट। गैस करो। कुछ बोलो, कुछ गेस करो। आप लोग बता दिया उसने। एक्टिंग करनी है। हाँ किसी तरह। हाँ चलो फटाफट। नहीं, इधर देख लोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। हाँ बोलो, लेकिन फिर भी देखना नहीं। बोलो चलो, टाइम स्टार्ट किया। चलिए। आप लोग मत गेस करिए जोर से, आप मन में गेस करिए। अच्छा सुनो, ये मूवी का नाम नहीं है, और मूवी ये का नाम नहीं, जगह है। मतलब शहर का नाम भी नहीं है, कोई चीज है ये। हाँ, कोई ऐसा। अच्छा तू एक्टिंग। कुछ और उसको नहीं समझ रहा, उसे कुछ और किसी और तरीके से समझा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये था GMC नागपुर। चलिए लास्ट राउंड गाइस, धनश्री और विश्वजीत। नहीं, मूवी नहीं है। हाँ। रनिंग स्प्रिंट रिलेटेड है, एथलीट से रिलेटेड है, ओलंपिक से रिलेटेड है। नाम क्या है? आया ना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। रनिंग रेस। आराम से गाइस, आप लोग बोलिएगा मत बस। कोई चीज का नाम है, कोई गेम वगैरह से रिलेटेड है। बोलो नहीं, आप बोलो नहीं। आप मत बोलो गाइस, आप भी मत बोलिए। कोई गेम का नाम नहीं है, लेकिन कोई गेम का नाम है। स्प्रिंट। अरे 1 मिनट हो गया है, लास्ट 1 मिनट। हाँ, एक मिनट। अब तो चेंज कर, इससे उसको नहीं आना तो चेंज कर। हाँ, कुछ चेंज करो। बोलना नहीं, अभी नहीं। 44। टॉपिंग से रिलेटेड है कुछ। वो ये जो करके बता रही ना, ये देखो, ये कैसा हो, किस गेम में होता है, ऐसा देखो ना। खो-खो। ठीक है, 50-50 रुपए। गाइस, हम अगले गेम के लिए चिट्स निकालते हैं। सर्कल रेस खेलेंगे, ठीक है। कुछ सर्कल्स बनाए जाएंगे यहाँ पे नीचे, और आप लोग को आपस में रेस लगानी है। रूल्स आपको सर समझाएंगे। सर्कल रेस का क्या होगा, पहले ये बॉयज का राउंड होगा, उसके बाद गर्ल्स का होगा। गाइस सुनिए, वहाँ पर 3 सर्कल बनाएंगे,
ठीक है, बॉक्स सर्कल बनाना है, ठीक है। और आपको जब तक म्यूजिक चलेगा तब तक कि आपको गोल 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 घूमना है ऐसे, ठीक है। जब तक म्यूजिक चलेगा सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमना है आपको। और जैसे ही गाना बंद होगा वैसे ही आपको सर्कल में आना है, जो सबसे पहले सर्कल में आ जाएगा वो जीत जाएगा, समझ आप। तेज घूमना है आपको, तेज 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 चक्कर आना चाहिए। बिल्कुल आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता इसको समझाना। तेजस्विनी, सिद्धि, और अभी बॉयज जैसे मत करना, आराम से मिताक्षी, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। सीन सामने दो। गाइस हम अगला गेम जो है वो पेपर डांस का करेंगे। पेपर डांस के गेम में होगा ये कि हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर बनेगा लड़कियों का पेयर, लड़कियां अलग खेलेंगी, लड़के अलग खेलेंगे। 6 पेयर चूज करेंगे, चिट्स निकालेंगे, ठीक है। 6 पेयर लड़कियों के, 6 पेयर लड़कों के। पहले गर्ल्स ये गेम खेलेंगी। होगा क्या कि हम पेपर बिछा देंगे, अच्छे साइज का पेपर होगा, पेयर्स को उस पर डांस करना है। थोड़े टाइम बाद गाना रोक दिया जाएगा, पेपर को फोल्ड कर दिया जाएगा। आप लोग को उस पेपर में रह के ही अपना डांस करना है। पेपर को फोल्ड करते जाएंगे और आप लोग एलिमिनेट होते जाएंगे। लास्ट में जो बचा वो विनर। सिमरन और खुशी एक टीम है, दूसरी टीम है रुजल और श्लेषा, तीसरी टीम है रुचिका और फाल्गुनी, चौथी टीम है अज़मा और पूनम। इसके बाद अगली टीम है मृणाली और साक्षिता एंड हमारी आखिरी टीम है सृष्टि और तनुश्री। आप लोग अपना पेपर फोल्ड कर लें।
चलिए अब बॉयज की बारी है। प्रियांशु और ऋषिकेश श्रीसत, और प्रियांशु प्लीज करो। अथर्व हाकिटे और अथर्व केसरवानी, हर्षित और शुभ महतो, उबैद और अथर्व कैलवान, हिमांशु और सुमन। जबरदस्त टंग ट्विस्टर निकाल रखे हैं, मजा आ जाएगा। तो 5 लोगों के नाम अनाउंस किए जाएंगे, एक टंग ट्विस्टर उनको दिया जाएगा और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं वो टंग ट्विस्टर को पढ़ के याद करने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड्स बाद आपसे टंग ट्विस्टर ले लिया जाएगा। आप में से आके जिसने सबसे बेहतर तरीके से उसे रेपिटेटिवली 5-6 बार बोल दिया बिना गलती के, वो जीत जाएगा। चलो एक बार तो बोलो, उसके बाद सोचेंगे। और सब ठीक है? लबक बबूला लबक, अब ना लपकेगा तो लपकेगा कब? लबक बबूला लबक, अब ना लपकेगा तो लपकेगा कब? लबक बबूला लबक, अब ना लपकेगा तो लपकेगा लपक बबूला लपक, अपना लपकेगा तो लपकेगा कब? लपक बबूला लपक लपक, अपना लपकेगा कब? लपक बबूला लपक, अपना लपकेगा तो लपकेगा कब? लपक बबूला लपक, अपना लपकेगा तो लपकेगा कब? लपक बबूला अपना लपकेगा तो लपकेगा ये भी विनर नहीं है, एक और राउंड होगा, उसके बाद तीसरा राउंड और होगा। तो जो अभी नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसकी फाइट होगी नंदिनी से। तो ऐसा था, लपक बबूला लपक, लपक बबूला
लपक बे तो लपक बे कब इधर थोड़ा चाचा बोला छुपी छाती चोर बराती 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 इधर थोड़ा चाचा बोला इधर थोड़ा चाचा बोला छुपी छाती चोर बराती 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 इधर थोड़ा चाचा सर लगा दे मूर्ति क्यों रखी मृणाल, नंदिनी और दीपल इन तीनों ने दो बार सही बोला है और दो तीन बार गलत बोला है। ठीक है, साक्षी ने एक बार सही नहीं बोला है। ठीक है, जल्दी से निकला। चलो एक बार फिर से बोल रहा है आप, एक बार में पूरा बोलना है सही, ठीक है ना, गलत नहीं बोलना है। तीनों बाहर जाओ। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। चुरकी मुर्की चाय चाय धड़क सनसनासन धाय धाय पच 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 पाय पाय। एक बार में सही बोलना है। चुरकी मुर्गी चाय चाय धड़क सनसनासन धाय धाय पच 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 पाय पाय। चुरकी मुर्गी चाय चाय धड़क सनसनासन धाय धाय पच 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 पाय पाय। चुरकी मुर्गी चाय चाय धड़क सनसनासन धाय धाय पच 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 पाय पाय। इधर तो देखो। ये हमारी बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। ये काट रहे कि बना रहे हैं?